آج ویو 360 میں جارج فلوئڈ کے لیے یادگاری تقریبات، لیکن غم و غصے کا اظہار بھی جاری۔ ایک ڈونر سے جو کلیکشن ہوتی ہے وہ 2 ریسیپینٹس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ویکسین کی تیاری اور دستیابی تک پلازما تھراپی کس حد تک کورونا وائرس کا علاج ہو سکتی ہے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کورونا وائرس کی وبا کے بعد امریکی ایئر لائنز کا مستقبل کیا ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں جارج فلوئڈ کی مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ویکینڈ پر بھی جارج فلوئڈ کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور ان تقاریب میں کئی نامور شخصیات نے شرکت بھی کی۔ وائس آف امریکہ کی نخبت مالک نے ان واقعات کو آپ کے لیے اپنی رپورٹ میں کور کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں نخبت کے پاس۔ نسل پرستی کے خلاف امریکہ میں تقریباً 2 ہفتوں سے جاری احتجاج کے دوران اس ویکینڈ پر اب تک واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہونے والے لوگوں کا یہ سب سے بڑا مجمع تھا۔ یہ احتجاج یوں تو سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے شروع کیا گیا ہے، لیکن مظاہرین میں ہر رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی موجودگی نمایاں تھی۔ اور پوری دنیا کو اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ تبدیلی آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مظاہرہ صرف جارج فلوئڈ کے لیے نہیں ہے۔ یہ مظاہرہ امریکی سیاہ فام، امریکی ہسپانوی افراد اور آبائی امریکی مرد، خواتین اور بچوں کے منظم قتل کے بارے میں ہے، جسے اب ختم ہونا ہوگا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو محفوظ رکھنے کے لیے سینکڑوں رضاکاروں نے سٹالز لگائے، جن پر پانی، کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزرز کا بھی انتظام تھا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں ہم سب لوگوں کو، سیاہ فاموں کو، دوہری وبا کا سامنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب باہر نکلیں اور حکومتی اختیار رکھنے والوں سے بات کریں۔ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہونے والے لوگ آج اس بات پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی آواز میں دنیا بھر کے لوگ آواز ملا رہے ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں نسل پرستی کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے صرف آپ کی جلد کی رنگت کے باعث آپ کے حقوق کم ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ No, it's just not acceptable. 2 ہفتے سے امریکہ بھر میں جاری اس احتجاج میں شامل لوگ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اس بار ان کی آواز کسی معنی خیز تبدیلی کا سبب ضرور بنے گی۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ امریکہ بھر میں زیادہ تر مظاہرے جو ہوئے وہ تو پرامن تھے، لیکن کچھ شہروں میں لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ ریاست کیلیفورنیا کے علاقے لانگ بیچ میں تارکین وطن کی ایک کمیونٹی اپنے چھوٹے کاروباروں کے تباہ ہونے پر ناراض اور خوفزدہ ہے۔ یہ تازہ واقعات انہیں ماضی کے دردناک واقعات کی یاد دلاتے ہیں۔ نیٹ ورکس کے کیمرے جب ہیلی کاپٹر سے عکس بندی کر رہے تھے تو ایک چھوٹے ریسٹورانٹ کے مالک رمپو چمپ زمین پر اپنا ساز و سامان لوٹیروں سے بچانے میں مصروف تھے۔ میں بہت خوفزدہ تھا، یہ کسی فلم کا سین لگ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ ہر طرف سے آ رہے تھے اور مجھے ان پر بندوق تاننا پڑی اور میں نے انہیں کہا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ رمپو چمپ آخر کار ریسٹورانٹ سے چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو اس کی پراپرٹی کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی ایک رشتہ دار کا جیولری سٹور جلا دیا گیا تھا۔ ہم خمر روج سے بچ کر یہاں آئے۔ شروع میں جب میں چھوٹا تھا تو امریکہ میں میری مار پیٹ بھی ہوئی۔ اب یہ انہی دنوں کی باز گشت ہے۔ لانگ بیچ پر بسنے والے بہت سے رہائشی اور چھوٹے کاروباروں کے مالکان 70 کی دہائی میں نسل کشی کے خوف کی وجہ سے کمبوڈیا سے فرار ہوئے۔ رمپو کہتے ہیں کہ ایک تارک وطن کی حیثیت سے انہیں امریکہ میں بھی نسلی تعصب کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عمارتوں کی لوٹ مار اور توڑ پھوڑ ایک اور ناانصافی ہے۔ ایسے میں جب ملک بھر میں جارج فلوئڈ کی موت پر مظاہرے جاری ہیں، بہت سے کمبوڈین نژاد امریکی اپنے حالات اور تجربات کے بارے میں آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف سیاہ فام امریکیوں کی زندگی کو ہی نہیں متاثر کر رہے، بلکہ یہاں پر تمام اقلیتیں اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے اس کی اطلاع نہیں دی۔
We then report it in most cases. चार्ल्स सोम को लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो एक छोटे कारोबार के मालिक हैं और 90 के अशरे में लॉस एंजलिस के पुरतशद्दुद फसादात के ऐनी शाहिद हैं। I remembered my friend. मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त हम छत पर थे। मेरे पास AK-47 और उसके पास बंदूक थी। जवाब बहुत वाज़े है, जो लोग अपने बचाव के काबिल थे उनके पास आज भी स्टोर्स हैं। ताहम इस मर्तबा उन्हें खदशा है कि शायद कुछ कारोबार बिल्कुल बहाल ना हो सके। What's done is done, but I'm afraid the outcome. This is very traumatic for me. मेरे लिए ये एक सदमा है। मुझे इन खौफनाक यादों से गुजरना पड़ रहा है, जिनका तजर्बा मुझे अपने बचपन में नस्ल कुशी के वाक़यात के दौरान हुआ। लाउरा कंबोडिया टाउन की रहायशी हैं और एक ट्रॉमा सेंटर में मुलाजिम है। मुझे मालूम है लूट मार से हमारे लोग परेशान हैं। मुझे मालूम है कि सियाफाम अमरीकी तकलीफ में हैं। इसका सिर्फ एक हल है कि सब यकजा हों, और मैं चाहती हूँ कि तमाम हालात के लिए हम लूट मार करने वालों को मोरद इल्ज़ाम ना ठहराएं, क्योंकि ये सब यहाँ पर सिस्टम की वजह से है। जो लोग तब्दीली के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं उनके लिए वो कहती हैं, आपको अदम तशद्दुद अपनाना होगा। आपको अपनी आवाज़ ऐसे बुलंद करनी होगी कि मेरे जैसे लोगों को तकलीफ ना हो। This is our aftermath. एलिज़ाबेथ ली के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका भर में होने वाले एहतजाज से मुतालिक अपडेट्स और कोरोना वायरस से मुतालिक जानने के लिए, इसके अलावा दुनिया भर की मजीद खबरों के लिए भी आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए जदोजहद जारी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस हवाले से रिसर्च भी कर रही हैं और कई ट्रायल्स इस हवाले से हो भी रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन की अदम मौजूदगी में इस वक्त कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के बाज़ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी प्लाज्मा थेरेपी को आजमाया जा रहा है और कई मरीज इस इलाज की मदद से सेहतयाब भी हो चुके। पेशावर से नजरुल इस्लाम हमें बता रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और ये कोविड-19 के खिलाफ किस हद तक मौसर किरदार अदा कर सकती है। वबाई अमराज के खिलाफ कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नया नहीं। मुख्तलिफ अमराज के लिए ये तरीका 100 साल से ज़ायद अरसे से अपनाया जा रहा है। प्लाज्मा खून का वो माया हिस्सा है जिसमें खून के खलिये तैरते हैं। इसी प्लाज्मा में किसी भी मखसूस मर्ज से लड़ाई के दौरान इंसान के जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे शख्स का प्लाज्मा मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाता है जो खुद सेहतयाब हो चुका है, ताकि इसके जिस्म में बनने वाली एंटीबॉडीज दूसरे शख्स के अंदर भी मर्ज के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में मदद दें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कोविड-19 के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में आजमाइशी बुनियादों पर किया जा रहा है। एक डोनर से तकरीबन 900 ml प्लाज्मा जो है वो लिया जाता है और बाकी जो ब्लड के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं बाकी हैं वो वापस डोनर को मिल जाते हैं ताकि उनकी अपनी सेहत पे भी कोई फ़र्क ना पड़े। एक डोनर से जो कलेक्शन होती है वो 2 रिसिपिएंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकती है। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले के जिस्म से प्लाज्मा निकालने में तकरीबन 90 मिनट लगते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सेहतमंद डोनर 2 हफ्तों के बाद दोबारा भी प्लाज्मा अतिया कर सकता है। ICU में जो हम पेशेंट्स देखते हैं उनकी हालत देखते हैं, जो जिनको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए होते हैं तो वो बहुत एफर्ट करते हैं उसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, और मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो उनको देख के बंदा कहता है अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है, किसी को फ़ायदा हो सकता है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक 20 से ज़ायद अफराद पर ये तरीका इस्तेमाल किया जा चुका है और डॉक्टर्स के मुताबिक नताइज तसल्ली बख्श हैं। हमारे पास जब कोई भी होप नहीं है, ना हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ना हमारे पास कोई वैक्सीन है, सो ये वाहिद होप है इस वक्त, इस टाइम में, कि पेशेंट को बचाने में उसका जो रेट है डेथ की तरफ जाना या वेंटिलेटर की तरफ जाना, उसको हम थोड़ा सा स्लो और कम कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने प्लाज्मा थेरेपी को बाकायदा इलाज तो करार नहीं दिया, ताहम अमरीका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने अपने मुल्कों में इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई है।
ماہرین کے مطابق پلازما تھراپی اس سے پہلے سارس جیسی سانس کی مہلک بیماری کے خلاف مؤثر ثابت ہو چکی ہے، جو کہ کرونا وائرس کی ہی ایک قسم کے باعث پیدا ہوئی۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ امریکہ بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے۔ 1 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ میں کرونا وائرس کی وبائی بیماری ذہنی طور پر معذور افراد کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ملک بھر میں ہسپتالوں میں امتیازی سلوک بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد جن کو انفیکشن ہو اور وہ معذور بھی ہوں، وینٹیلیٹرز ان کو مہیا نہ کیے جائیں۔ ایسی صورتحال میں کس طرح سے پیشنٹس کو ڈیل کیا جائے گا؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ 37 سالہ میتھیو فاسٹر ریاست الاباما میں رہتے ہیں۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے ان کے اہل خانہ ان کی زندگی کے لیے خوف زدہ ہیں، کیونکہ میتھیو ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ریاست الاباما کے ابتدائی منصوبے میں کہا گیا تھا کہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہو جانے کی صورت میں شدید ذہنی معذوری، نسیان یا دماغی چوٹ سے متاثرہ لوگوں کو اس منصوبے کے تحت وینٹیلیٹرز کے لیے کم ترجیح دی جائے گی۔ یہ خیال ہے کہ ایک میڈیکل ٹیم کہہ سکتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذہنی معذوری کی وجہ سے وینٹیلیٹر کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دلسوز اور ناگوار ہے۔ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ 2020 میں پالیسی سازوں کا ذہنی معذوری کے شکار لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہولناک ہے۔ سرگرم کارکنوں کے احتجاج کے بعد الاباما نے اس پالیسی کو ختم کر دیا اور ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی۔ تاہم سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی کے ایک تجزیے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ وینٹیلیٹرز کی قلت کی صورت میں امریکہ کی تقریباً تمام ریاستوں کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ وفاقی گائیڈ لائنز کے مطالبے کیے جاتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ریاستوں کو ایسا لگے کہ وفاق ان پر حکم صادر کر کے حد سے تجاوز کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاستوں کو اچھی پالیسیاں بنانے میں مدد دینے کے لیے خاص رہنمائی مہیا کرنے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے۔ متعدد ڈاکٹرز اور صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام ریاستوں کو اس قسم کی پالیسیز کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وبا جاری رہے گی اور انفیکشنز کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے، اور واضح پالیسیز کے بغیر یہ فیصلہ کہ کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو مرنے دینا ہے ڈاکٹرز اور نگہداشت دینے والوں کو الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ صحت سے سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی کی رپورٹ پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا۔ محکمے کے مطابق معذور افراد دوسروں ہی کی طرح ہیں اور ڈاکٹرز کو اپنے فیصلے بلا امتیاز کرنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی صحت کی پالیسیز وضع کرنے کے لیے کام کریں گے جو امتیازی سلوک سے پاک ہوں۔ لقب لیوزی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک نے اپنے ملکوں کی انڈسٹریز کو بچانے کے لیے مختلف طرح کے ریلیف پیکیجز دیے۔ کورونا وائرس کا امپیکٹ اتنا شدید تھا کہ چائنا سے لے کے اگر ہم دوسرے ممالک تک، یورپین ممالک تک یا امریکہ تک دیکھتے ہیں تو مختلف انڈسٹریز کو بچانے کے لیے مختلف طرح کے پیکیجز اناؤنس کیے گئے۔ امریکہ میں بھی حکومت کی جانب سے جو امدادی پیکیجز دیے گئے وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کی طرح ایئر لائن انڈسٹری کو بھی دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے اثرات کم کرنے کے لیے اپنے ملازمین کی تعداد ایئر لائنز اس وقت بہت حد تک کم کر رہی ہیں۔ امریکہ کی کئی بڑی ایئر لائنز کے بزنسز میں وبا کے باعث کئی گنا کمی واقع ہوئی ہے، اور وبا سے پہلے وہ جس پیمانے پر کام کر رہی تھیں شاید اب وہ نہ کر پائیں۔ ایئر لائن انڈسٹری کے مسائل ہیں کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکن ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز نے انتظامیہ اور امدادی عملے میں 30% کٹوتی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ڈیلٹا ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ وہ موسم خزاں میں کٹوتیوں سے بچنے کے لیے بائی آؤٹ اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کی پیشکش میں توسیع کر رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فضائی کمپنیوں کا کام اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ اگر ان کی پروازیں پہلے کی طرح نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی کوریج کم ہی کریں گے، اور پھر ان کے کام میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اس لیے انہیں ملازمین کو بھی فارغ کرنا پڑے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ 30% کٹوتی کافی زیادہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 5 سالوں میں مسافروں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ملازمین کی تعداد بھی تیزی سے بڑھی تھی۔ گزشتہ 5 برسوں میں امریکی ایئر لائنز میں ملازمین کی تعداد میں تقریباً 25% اضافہ ہوا ہے۔ مارچ 2015 میں یہ تعداد 6 لاکھ تھی، جو اس سال 7,50,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسافروں کی تعداد دیکھیں تو وہ محض 15% بڑھی ہے۔ کرونا وائرس ایڈ ریلیف اینڈ اکنامک سیکیورٹی ایکٹ کے امدادی پروگرام کے تحت امریکن ایئر لائنز کو $5.8 ارب کے ساتھ ساتھ
शरह सूद में भी छूट दी जाएगी। यूनाइटेड एयरलाइंस को तकरीबन 5 अरब, डेल्टा एयरलाइंस को 5.4, जबकि साउथ वेस्ट को 3.3 अरब डॉलर्स तक की मदद फराहम की जाएगी। अपने एक बयान में अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि इमदादी रकम के साथ साथ उसने इस मौसम गर्मा में पहले के मुकाबले में चंद सौ कम परवाजें चलाने का मंसूबा बनाया है, इसलिए उन्हें कम मुलाजमीन और अमला दरकार होगा। दुनिया भर में फ़ज़ाई कंपनियों ने तकरीबन 15,000 जहाज़ों को खड़ा कर दिया है और कुछ तैयारों को आमदन के पेश नज़र सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अदीस अबाबा में इथियोपियन एयरलाइंस के इंजीनियर्स ने तैयारों को कार्गो जहाज़ों में बदलने का काम शुरू कर दिया है। हम मुसाफिर तैयारों को कार्गो जहाज़ में बदल रहे हैं। हमने अब तक 20 मुसाफिर तैयारों को कार्गो जहाज़ में बदला है। इथियोपियन एयरलाइंस को जनवरी से मार्च के दौरान 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का खसारा हुआ है, लेकिन कंपनी के सीईओ इसे उम्मीद अफजा करार दे रहे हैं। We see some kind of maybe 50% recovery in the summer because मौसम गर्मा में 50% तक नुकसान का अजाला हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग घरों में बंद रहकर तंग आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यूरोपीय और अमेरिकी हुकूमतें अब काम शुरू कर रही हैं और लोग भी बाहर आ जा रहे हैं। निस्बतन सस्ती बरतानवी एयरलाइन ईजी जेट ने भी अपने मुलाजमीन में 1/3 कमी की है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, लताम और एवियांका समेत कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। उन्हें कुछ वक्त चाहिए ताकि वो एक बार फिर कदम जमा सकें। उनके कर्ज ख्वाहों को इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्हें पहले अपने कारोबारों को खत्म होने से बचाना है। माहिरीन का ख्याल है कि बंदिश खत्म होने के बाद भी फजाई कंपनियों की बहाली का दारोमदार कई दीगर बातों के साथ साथ इस अमर पर है कि मुसाफिर फिर से एतमाद के साथ परवाज कर सकते हैं। मरियम दयालो के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस ने तकरीबन जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। तालीम भी उनमें एक बड़ा शोबा है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तालीमी निज़ाम के मुतासरीन में अगर हम देखें तो वालिदैन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस लिहाज से आया है कि तालीमी साल ख़त्म हुआ है, गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, तो इस साल बच्चों को वालिदैन कहाँ लेके जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अमेरिका भर में सैकड़ों समर कैंप खुला करते थे, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से खदशा ये है कि दीगर सहूलियात की तरह इस बार समर कैंप भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। 3 बच्चों की वालदा नडेरा निकोफोरा वर्जीनिया में रहती हैं। वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों को मसरूफ रखने के लिए हमेशा गर्मियों में लगने वाले कैंप्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती थीं। लेकिन ये साल बहुत मुख्तलिफ है, खास तौर पर उनके सबसे बड़े बेटे के लिए। हम इसे एडवेंचर कैंप में ले जाना चाहते थे। वहाँ बच्चे पहाड़ पर चढ़ना, कायाकिंग और उम्र की मुनासबत से दूसरे इंतहाई दिलचस्प खेल खेलते थे। हमने इसे बाद में एक और कैंप में भी डालना था। इसमें प्रोग्रामिंग पर तवज्जो मरकूज थी, क्योंकि मेरा बच्चा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत दिलचस्पी रखता है। नडेरा ने सर्दियों में ही दोनों कैंपों की फीस की अदायगी कर दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी कैंप ने गर्मियों की छुट्टियों में खुलने का ऐलान नहीं किया है। मैं ये कहूँगा कि हमारे कैंपों में से तकरीबन 25% ने इस मौसम गर्मा में बंद रहने का फैसला किया है। बाकियों ने या तो फैसला कर लिया है कि वो अभी फैसला नहीं कर सकते हैं, या उन्होंने फैसला कर लिया है मगर जानते हैं कि ये तब्दील हो सकता है। मेरीलैंड की इस काउंटी में फिलहाल समर के तमाम कैंप्स को मनसूख करने का फैसला किया गया है। ताहम जब रियासत में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो तभी कैंप्स भी खुल जाएंगे। हम खानदानों का पैसा नहीं रखना चाहते थे। हम जानते थे कि अभी एक मुश्किल वक्त है और हमने फैसला किया है कि हम मौजूदा समर कैंप सेशन को मनसूख करके घर वालों को रकम वापस कर दें ताकि उनके पास ये रकम हो। लेकिन जब मौसम गर्मा के कैंप्स दोबारा खुलेंगे तो वहाँ पाबंदियाँ और नए कवायद ज़वाबित नाफिज होंगे। हर एक कैंप में मौजूद बच्चे के दरमियान काफी फासला रखना और ये भी यकीनी बनाना कि बिस्तरों के दरमियान एक खास फासला मौजूद है और यकीनी तौर पर एक दूसरे को हाथ लगाने वाली खेलों की इजाजत नहीं होगी। आम तौर पर 2 असातिज़ा के साथ 10 या 12 बच्चे होते थे और वो तीर अंदाजी के लिए एक दूसरे उस्ताद के पास जाते थे, तैराकी के लिए किसी और उस्ताद के पास और जिप लाइनिंग के लिए किसी और के पास, मगर अब वो हर वक्त एक ही उस्ताद के साथ रहेंगे। चेहरे पर मास्क, चीजों की सतहों और कमरों की सफाई और दर्जा हरारत की जांच रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। मौसम गर्मा के कैंप्स में तब्दीली लाने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, जिसके लिए हो सकता है कि ये देर से शुरू हो। आमतौर पर जून हमारा सबसे मसरूफ महीना है और मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि ये असल में है या नहीं, लिहाजा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद अमेरिकन कैंप एसोसिएशन का ख्याल है कि इस मौसम गर्मा में कुछ कैंप्स खुलेंगे, महज ऑनलाइन ही नहीं
this summer more than any summer ever. इस मौसम गर्मा में पहले कभी के मुकाबले में बच्चों को हकीकी कैंप के तजुर्बे की ज़्यादा ज़रूरत है, जब उनको दूसरे बच्चों से मिलकर उनके साथ वक्त गुजारकर एक दूसरे के मसाइल को समझने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिलेगा। हर साल अमेरिका में 1500 से ज़्यादा समर कैंप्स लगाए जाते हैं। इनमें 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे वक्त गुजारते हैं। इस साल ये तादाद इंतहाई कम रहने का इम्कान है। लीसिया बेकलिट्स के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। लाहौर में घोड़े शाह के दरबार पर लोग किसी ज़माने में सोने चांदी के घोड़ों के चढ़ावे चढ़ाते थे। ज़माना बदलते ही मट्टी के बने हुए घोड़ों ने उनकी जगह ले ली। अब तो ना ये मट्टी के घोड़े बनते हैं और ना उन्हें बनाने वाले फनकार। देखिए मतरूक पेशों पर VOA की खुसूसी सीरीज से मट्टी के खिलौने बनाने वालों के बारे में ये रिपोर्ट। घुग्गू घोड़े खिलौने वाले भोले, घुग्गू घोड़े खिलौने बेचने वाला भोला आ गया, ऐसी आवाजें लगाते थे हम। मट्टी के खिलौने बनाते थे और दरबार घोड़े शाह ले जाते थे। ये तकरीबन 100 साल से बिक रहे थे, लेकिन एक बड़े मौलाना साहब आए और उन्होंने ये बंद करवा दिए। उन्होंने कहा ये मिट्टी के बुत हैं। मिट्टी के बुत है। अकीदत के लिए ना उन्होंने जो है घोड़े शाह से हटा के कि ये अच्छा नाम नहीं लगता घोड़े शाह, वो उन्होंने मखदूम बहाउद्दीन जो है उनका असल नाम, रियल नाम वो रख दिया। तो लोग पहले इधर सोने चांदी के घोड़े भी चढ़ाते थे पुराने लोग जो थे अपनी ये अकीदत के मुताबिक। तो अब तो लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया रुझान, तो अब मिट्टी के भी कोई नहीं चढ़ाता, बहुत कम रुझान हो गया। घुग्गू घोड़े बनाने शुरू किए हैं और मेरे परदादे तो सीखे, मेरे दादे ने। मेरे आबा अजदाद ने ये घुग्गू घोड़े यानी मिट्टी के खिलौने बनाने का काम शुरू किया। मेरे परदादा से ये काम मेरे दादा ने सीखा और मेरे दादा से मेरे वालिद ने, जिन्होंने हमें ये काम सिखाया। जिस मिट्टी से रोटियां पकाने वाले तंदूर बनते हैं उसी से ये खिलौने भी बनते हैं। झुंझुना, बतख, मोर, तोता, चिड़िया और घोड़ा, ये सब इसी तंदूर वाली मिट्टी से बनते हैं। रात को मिट्टी लाकर इसे हमवार करके पानी में डाल दिया जाता था, जिसे सुबह उठकर आटे की तरह गूंद लिया जाता था। आटा गूंदने का ऐसे मिट्टी गूंदने। इसके बाद खिलौने बनाकर धूप में रखकर सुखाए जाते थे। इसके बाद उन्हें गोबर के उपलों से लगी आग में पकाया जाता था। पकने के बाद इसे ठंडा करके इसे चूना लगाया जाता था। इसके बाद इस पर मुख्तलिफ रंगों से डिज़ाइन बनाए जाते थे। इसके बाद उन डिज़ाइन वाले खिलौनों को गली महलों में ले जाया जाता था और ये डुगडुगी बजाकर बच्चों की तवज्जो हासिल की जाती थी। इससे उन्हें पता चलता था कि मिट्टी के खिलौने बेचने वाले आ गए हैं। हमारी दिया डिज़ाइन पाई देसी, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਆ गए, खिलौने वाले आ गए। जब गांव में जमींदार गंदम और चावल की कटाई करते थे तब हम गांव-गांव जाते थे, मिट्टी की टोपियां बनाकर और खिलौने बनाकर उन्हें बेचते थे। कोई खिलौने ले लेता, कोई मिट्टी की टोपियां, जिसके बदले हमें गंदम और चावल मिल जाते थे। कोई ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ऐसे साढ़े वडेरे ये कमाकर हमारे बड़ों ने हमें पाला, लेकिन अब हमारे जैसे जवान सरों पर टोकरियां उठाए ये खिलौने नहीं बेचते। अब हम इस बात को बुरा समझते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। अब हम मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई रेडी चलाता है, कोई खुशबू और इतर बेचता है और कोई रक्षा चलाता है। कोई अतर वाली रेडी चला के बेचता, कोई रक्षा चलाता है। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त सख्त लॉकडाउन नहीं है तो आपको सख्ती से एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।